Um, Good evening, everyone. I hope you I hope you all are doing well. A very warm welcome to all our respected speakers and dear participants. On behalf of Time Phytobiomed Private Limited and EdGrow Foundation, I welcome you all to today's session of our 1 week hands-on workshop on network pharmacology, molecular docking, pharmacokinetics, and molecular simulation. I am Swati Mishra and I'll be your host for today's session. First of all, thank you all for joining us once again. We hope you found the previous session informative and useful. Today is an exciting session because we'll begin the hands-on practical training on network pharmacology. This session will help you understand the practical workflow and the tools used in network pharmacology research. I request everyone to keep your laptops ready, follow the instructions carefully, and actively participate through the session. If you have any questions, please feel free to ask during the session or write them in the chat box. Now, without taking much of your valuable time, it's my pleasure to invite Mr. Bhuvnesh to conduct today's hands-on practical session on network pharmacology. Mr. Bhuvnesh has been supporting this workshop from the beginning and has extensive practical experience in network pharmacology and computational drug discovery. We are delighted to have him with us today. Mr. Bhuvnesh, the platform is all yours. Thank you. Swati, and thank you to me, sir. Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity. It's my pleasure to introduce I am Bhunesh Mania from Udaipur. Currently, I'm pursuing my PhD research program, and today I am presenting uh, some of my research work is related to network pharmacology, and I will explore whole network pharmacology step by step. So, first is what is network pharmacology? So, network pharmacology, I am audible, all of you, all of student, I am audible. Audible? Okay. As per the Sumisa instruction, I will speak in Hindi and English both language. So, तो मैं थोड़ी हिंदी भी बोल रहा हूँ आपके सामने, थोड़ी इंग्लिश भी बोलूंगा। कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आप इजीली टॉक कर सकते हैं, जो आपको लैंग्वेज सुटेबल लगे उसमें। तो ज्यादातर मैं फोकस हिंदी मीडियम में अपनी इंग्लिश हिंदी से ही मैं करूंगा, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। एंड मिक्स लैंग्वेज आपको इंग्लिश के लिए, इंटरनेशनल के लिए मैं इंग्लिश में ही आपको ट्रांसलेट कर बताता जाऊंगा। So what is a network pharmacology? So network pharmacology is a systemic biology approach. In this network pharmacology, we study how drugs interact with multiple targets and biological pathway, rather than focusing a single drug and single target interaction. It combines pharmacology, bioinformatics, and systemic biology and network analysis to understand the complex relationship among drug, genes, protein, disease, and signaling pathway. यस, आपको स्लाइड नहीं दिख रही है, अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। ठीक है, अब स्लाइड में ही आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगा मैं एक एक चीज कि आपको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका प्लांट कौन सा है और डिजीज कौन सी है, या फिर प्लांट का कंपाउंड कौन सा है और डिजीज कौन सी है। तो मैं ब्रॉडली देख रहा हूं, आप चाहो तो कंपाउंड का देख सकते हो। कंपाउंड सिंगल हो सकता है, मल्टीपल कंपाउंड हो सकते हैं। पर मल्टीपल कंपाउंड की जब मैं बात करूं तो कंपाउंड किससे ऑब्टेन हो रहे हैं, ज्यादातर आपके प्लांट से हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्लांट की बात करूंगा, देन
मैं कंपाउंड के ऊपर आऊंगा, सिंगल कंपाउंड के ऊपर। तो मैं सबसे पहले प्लांट की बात कर रहा हूँ। मान लो मेरे प्लांट के पास 100 कंपाउंड अवेलेबल है उस प्लांट में, और मेरी डिजीज है वो भी एक पर्टिकुलर नहीं होके ब्रॉड है, जस्ट लाइक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर या डिजीज में आपको न्यूरो डिजेनरेटिव की बात करूं, एल्जाइमर, एपिलेप्सी, पार्किंसन, डिप्रेशन, खूब सारे अलग अलग हो सकती है। तो आपको पर्टिकुलर प्लांट का कौन सा कंपाउंड पर्टिकुलरली डिजीज के ऊपर इफेक्ट करेगा वो आपको पता लगाना है। तो हम नेट फार्माकोलॉजी के थ्रू लगा सकते हैं। देन अपन आगे मॉलिक्यूलर डॉकिंग करके, सिमुलेशन करके उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है बेस्ट कंपाउंड, बेस्ट डिजीज के लिए जो ट्रीट कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन बाय वन, जस्ट लाइक मैं सबसे पहले जो कॉमन प्लांट है वही ले लेता हूँ, विदानिया सोमनीफेरा। यू नो विदानिया सोमनीफेरा, आई थिंक everyone know about Vidania somnifera and disease न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज के बारे में। सो फर्स्ट बात करूंगा विधानिया सोमनीफेरा। दिस इज अश्वगंधा, इट्स अ विधानिया सोमनीफेरा। माय स्लाइड इज विजिबल और नॉट? नाउ विजिबल, ओके। सो अपन सबसे पहले विधानिया सोमनीफेरा के कंपाउंड के बारे में देखेंगे, कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स विधानिया सोमनीफेरा में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले मैं विधानिया सोमनीफेरा को कॉपी करके सबसे पहले पब कैम में जाता हूं। सभी अपने कंप्यूटर ऑन रखे, मेरे साथ साथ परफॉर्म करते रहे। आपकी जो भी डिजीज, जो भी प्लांट है उसके प्लांट का नाम लिखो, या फिर जो भी कंपाउंड है उसका नाम आप पब कैम में पुट करो। लैपटॉप में ऑन करो और पब कैम में आपका कंपाउंड पुट करो। Just like Vidania somnifera. This is my plant. Search. This is Vidania somnifera, and this is Vidania somnifera अश्वगंधा। तो आपको दिख रहा होगा विधानिया सोमनीफेरा का आगे यहाँ विधानोलाइड है। विधानोलाइड विधानिया सोमनीफेरा का एक कंपाउंड होता है। तो हम इसको स्किप करेंगे, बात करेंगे हम विधानिया सोमनीफेरा प्लांट की। क्लिक करोगे विधानिया सोमनीफेरा। अभी हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट का रिलेशनशिप किससे करेंगे? डिजीज से करेंगे। ठीक है, रिलेशन बैठाने की कोशिश करेंगे कौन सा कंपाउंड विधानिया सोमनीफेरा का डिजीज से कोरिलेट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके कंपाउंड देखेंगे कि कौन कौन से इसमें कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो केमिकल्स कंपाउंड, आपको केमिकल कंपाउंड में यहाँ नीचे आपको खूब सारे कंपाउंड दिख जाएंगे। ये सारे आपके कंपाउंड हैं। जैसे आपको विदानोलाइड दिख रहा है, आगे नेक्स्ट करोगे एनाफेरिन दिख रहा है। ये सारे खूब सारे आपके जो जो कंपाउंड है अलग अलग आपके दिखेंगे। आपको कौन सा कंपाउंड लेना है वो सारी की सारी एक लिस्ट बना दीजिए। सारे मान लो आपके पास विधानिया सोमनीफेरा के 10 कंपाउंड आए, तो यहाँ पे 69 आइटम शो हो रहे हैं, मेटाबोलाइट शो हो रहे हैं।
You can see here metabolites 69. ठीक है, यहाँ पे और आपको खूब सारे कंपाउंड देख जाएंगे। सारे के सारे कंपाउंड को एक बार आप एक्सेल में लेके उसको सेव कर दीजिए। आप यहाँ से सेव हो जाएगा, आपको सीधा क्लिक कर दीजिएगा CSV फाइल में या फिर XML फाइल, आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं उस कंपाउंड को। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट स्टेप, क्या है? द बायोलॉजिकल एक्टिव फाइटोकेमिकल्स ऑफ विजानिया सोमनीफेरा थ्रू लिटरेचर रिव्यू एंड पबकेम डाटाबेसेस। क्या करेंगे अपन? सर्च करेंगे। देन these phytochemicals will further used for assessment of pharmacokinetic parameter। ठीक है, इसको अपन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के रूप में फर्दर यूज करेंगे। अब सेकंड स्टेप देखिए, ये आपका पब केम से आपको सिर्फ ये पता लग गया कि इसमें विदानिया सोमनीफेरा में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई ट्रबल? नेक्स्ट स्टेप चले। ओके, सेकंड स्टेप, अब जो हमारे पास ये सारे कंपाउंड आए हैं, अब इसको क्या करेंगे अपन? एक सॉफ्टवेयर में पुट करेंगे। सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर का नाम है मेरे साथ आप अपने कंप्यूटर में चलाते रहे, स्विस ADME सॉफ्टवेयर। क्लिक ऑन दिस स्विस ADME। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक स्विस ADME आ गया। स्विस ADME में आप क्या करोगे? जो अश्वगंधा है, विदानिया सोमनीफेरा का कंपाउंड जो शो हो रहे थे, उसकी स्माइली यहां पुट करोगे। जैसे विधानोलाइट डी था इसके अंदर, विधानोलाइट डी की स्माइली कहां पुट करोगे? स्विस ADME में पुट करोगे। आपको स्माइली यहां मिल जाएगी, ये है आपकी स्माइली। कॉपी, सिंपली कॉपी थ्रू पबकेम एंड पेस्ट हियर। स्माइली आपने पेस्ट कर दी कहा? स्विस ADME में पेस्ट कर दी। एंड क्या किया आपने? इसको रन करवाया। रन, अब आपने रन करवाया तो आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्माइली, इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, सबका सब चीज आपको इसके बारे में, विधानोलाइट डी के बारे में सारा का सारा मिल गया आपके पास। ठीक है, अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। कभी भी अपन न्यूरो के बारे में बात करें तो न्यूरो की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है। तो उसको क्रॉस कर पा रही है या नहीं, ये कंपाउंड क्रॉस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो आप चेक करोगे। यहाँ पे शो बॉइल्ड एग क्लिक करो, शो बॉइल्ड एग पे, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ आपका मॉलिक्यूल शो हो रहा है और ब्लड ब्रेन बैरियर, वो येलो एरिया ब्लड ब्रेन बैरियर का होता है। ठीक है, हाँ, रिपीट कर देता हूं। जो अपने, मानो अपने पास प्लांट कोई सा भी हो प्लांट,
कोई सा भी प्लांट है अपने पास, उसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में देख रहे हैं। अब इस कंपाउंड की स्माइली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अब मैं वापस इसको एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। स्विस एडीएमई, क्लिक ऑन स्विस एडीएमई। आप अपने नोटबुक पे एक एक स्टेप लिखते जाइए, वरना चूक गए तो आप स्टार्टिंग से, मतलब एक भी स्टेप चूक गए तो आपका पूरा पीछे वाला आगे वाला जो समझ में नहीं आएगा क्या आपने किया है क्या नहीं। तो जब कंफ्यूजन क्रिएट हो, आप यू कैन आस्क फ्रीली। अब यहाँ पे आप स्माइली पुट की थी, कर दी आपने स्माइली पुट, एंड आपने क्या किया, यहाँ पे रन का ऑप्शन है, रन करवाया है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? सभी को समझ में आ गया? रन करवाया है यहाँ पे बस ओनली, रन करवाया है। तो यहाँ पे स्माइली आ गई, फॉर्मूला आ गया, मोलिकुलर वेट आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन आ गया, ब्लड ब्रेन बैरियर परमिएबल नहीं है, ब्लड ब्रेन बैरियर नो आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लिपिंस की रूल है उसको भी फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसका मॉलिक्यूलर वेट 450 से ज्यादा है, इसलिए लिपिंस की रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको देखना है, हर एक कंपाउंड को देखना है कि वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। आपकी ड्रग लिपोफिलिक होनी बहुत जरूरी है, कंपाउंड है वो लिपोफिलिक होना जरूरी है, तभी तो ब्लड ब्रेन बैरियर न्यूरो की डिजीज है उसके ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने शो किया, शो बॉइल्ड एग, क्लिक ऑन शो बॉइल्ड एग। तो आपने यहाँ देखा कि आपका जो कंपाउंड है वो यहाँ शो हो रहा है। कहाँ शो हो रहा है? HIA, मतलब आपके इंटेस्टाइन में ये एक्शन शो करेगा, नॉट कि आपके ब्रेन में। ब्रेन को पेनेट्रेट ही नहीं कर पा रहा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनेट्रेट ही नहीं कर पा रहा, तो क्या है, उसकी एक्टिविटी ब्रेन में शो ही नहीं होगी। ठीक है, अब आप पूछोगे पीई पीजीपी प्लस क्या है, पीजीपी माइनस क्या है? तो पीजीपी प्लस क्या है, यहाँ पे ये जो है पीजीपी प्लस, और पीजीपी प्लस है आपका पैरा ग्लाइकोप्रोटीन सबस्ट्रेट है, और पीजी नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो क्या है, नॉन सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि मॉलिक्यूलर आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो ये बाहर आ रहा है, बाहर शो कर रहा है, तो मतलब ये एक्शन शो नहीं करेगा ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो यहीं ये कैंसिल हो जाएगा कंपाउंड, आगे इसको फर्दर यूज नहीं करेंगे। समझ गए सब? ऐसे के ऐसे नेक्स्ट अपन करेंगे इसकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल। कोई भी कंपाउंड होगा, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, पब कैम के ऊपर प्लांट को डालेंगे, पब कैम के प्लांट पे डालने के उसके कंपाउंड सारे एक्सट्रैक्ट करेंगे। कंपाउंड सारे एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको स्विस एडीएमई टूल सॉफ्टवेयर में डालेंगे। देन उसको क्या करेंगे, एडीएमईटी एनालिसिस करेंगे, और उससे पता लगाएंगे कि ये आपका डिजीज के रिलेटेड है या नहीं है। देन आप चेक करोगे उसकी टॉक्सिसिटी, क्योंकि यही आपका आ रहा है और टॉक्सिक ज्यादा हुआ तो फिर वो कंपाउंड का मतलब नहीं है आगे काम करने से। थर्ड लिखते हैं टॉक्सिसिटी प्रोफाइल। थर्ड स्टेप, सभी नोट करते रहिए, थर्ड स्टेप। वेट अ सेकंड।
अब यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका सभी का खुल गया होगा, एडमेट SAR 3.0 जो सॉफ्टवेयर है, ये चेक करता है आपकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल। सो टॉक्सिसिटी प्रोफाइल ऑफ कंपाउंड we will check by ADMET SAR online tool. So simply copy your compound smiley and paste here and run. ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा structure, molecular property and detail. So click on detail view. So you can see here all physiochemical properties of compound. Molecular weight is here. Lipinski rule accept, Pfizer rule accept, absorption, distribution, metabolism, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब टॉक्सिसिटी ज्यादा कौन सी शो कर रहा है, तो ये क्या है, न्यूरोटॉक्सिसिटी शो कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम हटाएंगे। जो 50% से ऊपर न्यूरोटॉक्सिसिटी शो कर रहा है, ऐसे कंपाउंड को हम रिमूव करेंगे। जो रिमेनिंग हो गए वो हम आगे फर्दर यूज में लेंगे। माउस की कार्सिनोजेनिसिटी कर रहा है, रेट में कार्सिनोजेनिसिटी कर रहा है, तो ये सारे ऐसे कंपाउंड है, उनको क्या है हम रिमूव करेंगे जो ज्यादा टॉक्सिक हो गए। तो अपन थर्ड पॉइंट क्या था, टॉक्सिसिटी प्रोफाइल ऑफ कंपाउंड चेक बाय ADMET SAR ऑनलाइन टूल। तो इससे अपन टॉक्सिसिटी चेक कर लें। गॉट इट। अब यहां तक अपन ने कंपाउंड के बारे में बात की है, कंपाउंड की बात यहां खत्म हो रही है। अब अपन सीधा चलेंगे प्लांट और डिजीज के बीच का नेटवर्क देखने के लिए, नेटवर्क फार्माकोलॉजी करने के लिए। तो उससे पहले ये सारी प्रोफाइल आपको चेक करनी पड़ेगी, देन आप आगे फर्दर काम करोगे। तो फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, प्रिडिक्शन ऑफ विधानिया सोमनीफेरा टारगेट्स एंड न्यूरो डीजेनरेटिव टारगेट्स, या फिर कोई भी कंपाउंड जो आपका कंपाउंड है वो उसका नाम लिख लो, प्रिडिक्शन ऑफ नेम कर दो, जो भी आपका है उसका नाम लिखो प्लांट का, एंड रिलेटेड डिसऑर्डर या डिजीज है उसके बारे में लिखो। ठीक है, तो टारगेट्स ऑफ विधानिया सोमनीफेरा स्पेसिफिक टू न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज रिट्रीव्ड फ्रॉम जीन कार्ड, स्टीच, बैटमैन, ड्रग बैंक एंड लिटरेचर। इन सब से आपको क्या करोगे, रिट्रीव करोगे, आपका कंपाउंड से क्या निकालोगे, जीन निकालोगे। आपके प्लांट या कंपाउंड से क्या निकालोगे, जीन निकालोगे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले अपन कर रहे हैं, सब कौन से प्लेटफॉर्म यूज में ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्लांट की प्लेटफॉर्म से मैं क्या कर, प्लांट से क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से क्या कर रहा हूँ, जीन्स ले रहा हूँ प्लांट के। ठीक है, और किसके रिलेटेड जीन ले रहा हूँ, न्यूरो डीजेनरेटिव या न्यूरो डिजीज के रिलेटेड जीन्स हो गए, वो मैं एक्सट्रैक्ट आउट करूंगा।
तो सबसे पहले लिखू जीन कार्ड एक डाटा बेसिस है, उसको मैं लिख रहा हूं जीन कार्ड डाटा बेस। सभी को समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेरी हो यू कैन इजीली आस्क। यहां तक क्लियर है? अब हम नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के ऊपर चल रहे हैं, तो यहां से आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आप यहां से कोई कंफ्यूजन, यहां से पहले पहले भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो फर्स्टली क्लिक ऑन जीन कार्ड। ये आपके सामने जीन कार्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी से जो ईमेल आईडी मिली हुई है, आई कांट अंडरस्टैंड, ओके प्रिया भाई, ओके फर्स्टली ओपन जीन कार्ड, फर्स्टली ओपन जीन कार्ड को retrieve firstly I will I will explain it. I will explain. I will explain also. So please understand firstly plant and then I will explain compound related. So firstly put your plant name. So plant name is Vidana somnifera here. And enter. So these are genes related to these genes related to Vidania somnifera. These genes are related to Vidania somnifera. Okay. Sir, please cut the side view. It is Yes. please Yes. cut the, yes, yes. Okay. Repeat it again. Okay. Open your gene card database and register here and log in here and put your compound name in search box and then search. Now you can see here various types of compound gene compound name. Various types of genes are here. You can export your gene through export. One second. So here, so you can export directly in Excel file to export. Okay. In gene card and export this. Second one is drug bank. This is public databases we can use freely. Drug bank, DB. Drug bank databases. You can search similarly
your plant name and compound name. Okay, your plant name, log in here, and this is targets. Click on targets and write here your compound name is Vidania somnifera. Vidania somnifera. Okay. Third one is Batman, and you can use literature also. Literature also you can use. Similarly, we will use for disease. Okay, so open gene card again. Click here, neurodegenerative disease, and click. So here, neurodegenerative disease compound name, and these are here. You can easily extract out. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अगेन वापिस एक बार करते हैं, क्लिक न्यूरो डिजेनरेटिव, सारे आपके जीन्स आ गए हैं यहाँ पे, न्यूरो डिजेनरेटिव के सारे जीन्स आ गए हैं। अब इसकी फाइल अलग बनाऊंगे और फॉर्म की एक्सेल फाइल अलग बनाऊंगे। प्रिपेयर एक्सेल फाइल, कंपाउंड एंड प्रिपेयर द एक्सेल फाइल ऑफ डिजीज। दोनों की अलग अलग एक्सेल फाइल बनाएंगे। कौन कौन से जीन्स कंपाउंड के रिलेटेड हैं या प्लांट के रिलेटेड हैं, और कौन से जीन्स आपके डिजीज के रिलेटेड हैं। गॉट इट? अब किसी का क्वेश्चन था कि अगर आपका पास प्लांट नहीं होके सिर्फ कंपाउंड है, लाइक आई हैव लिमोनिन कंपाउंड, लिमोनिन, लिमोनिन, ओके, तो सिंपली सर्च हियर लिमोनिन and you can see here various types of genes and prepare Excel file. समझ में आता है? कंपाउंड की अलग एक्सेल फाइल बनाओगे एंड आपकी डिजीज के जो जीन्स है उसकी अलग एक्सेल फाइल बनाओगे आप, और डिजीज की कैसे आप कंपाउंड को फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट योर डिजीज रिलेटेड जीन्स, so NCBI gene database. Click on NCBI gene databases. And here you can see gene. This is gene. Gene. Right here, like Alzheimer, neurodegenerative disease. So here neurodegenerative disease related disease, you can see
and prepare an Excel file. So various types of sheets are available and prepare Excel file of plant genes and disease related genes. Now you have two Excel file. One is related to your plant genes and one is related to your disease genes. Got it? Any confusion? Now we are going to second step, find out the common targets. So how to find out the common targets of particular disease and particular compound? Okay, so like I have one compound name. This is Alzheimer related genes, and this is compound related genes. I have prepared various types of Excel files so you can understand easily how to find out the common targets. So by the Venn tools, with the help of any tool, we will find out the common targets of our plant and disease. Click on 2.10 Venn. Okay, so you can see here list 1, list 2, list 3, and list 4. So write down here your compound name, like your compound name is quercetin, uh, limonene, like limonene. It's a compound, and now here is your disease name, neurodegenerative, yeah, and the short term, and the neurodegenerative disorder, yeah, disease, and put here your compound genes. Second, so I have prepared various types of our prepared various types of Excel. You can see the literature and different databases, this comparative economic data. These two types of these here. Target prediction. Yes,
अभी सही आ रहा है सभी को वॉइस मेरा? नाउ ऑडिबल और नॉट? ओके, तो अभी क्या करेंगे अपन? प्लांट के जीन्स मैंने पहले ही फाइल बना रखी है। आप ऐसे ही जो आपने फाइल बनाई है, जो आपने निकाला है, यहाँ से कॉपी करो सिंपली और पेस्ट करो यहाँ पे आपके कंपाउंड के जीन्स के। नेक्स्ट, आप आपके जो डिजीज के रिलेटेड जीन्स है, disease related genes, copy all disease related genes and put in Venitool databases. Okay. Copy. You can change color and line border and font also. तो आपने यहाँ चेक किया होगा, ज्यादा मैक्सिमम सारे के सारे जो 10 कंपाउंड्स है वो 100% आपके क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। क्योंकि आपने लिटरेचर रिव्यू से ये पता लगाया कि सिमिलर जो कंपाउंड है जो न्यूरोडिजेनेटिक है वही आपके यहाँ आएंगे। गॉट इट? यहाँ पे एक बार वापिस कंपाउंड क्लिक ले लिया आपने। सभी को समझ में आ रहा है? एक डिफरेंट कंपाउंड है आपका, वो आपका कॉमन टारगेट्स में नहीं आ रहा है, बाकी के सारे 9 कंपाउंड है वो आपके कॉमन में आ रहे हैं। जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है उसके कंपैरिजन में आपके सारे कंपाउंड जीन्स हैं वो मैंने चेक किए हैं। तो उससे आपके 9 कंपाउंड तो कॉमन आ रहे हैं और एक कॉमन नहीं आ रहे। कौन सा एक है ऐसा? तो वो BCHE कंपाउंड है वो आपका अलग आ रहा है। बाकी 9 कंपाउंड है वो आपके रिलेटेड टू क्या आ रहे हैं, रिलेटेड टू आपके डिजीज आ रहा है। गॉट इट? नाउ all 9 compound we copy we copied all 9 compound and make an Excel file and we create file name is Veni common targets name. Okay. So neurodegenerating and Vidania somnifera targets using the Veni tool we will find out. Okay. जो लिमोनिन है या फिर विदोनिया सोमनिफेरा है, with the help of Veni tool we will check common targets. ठीक है, तो अपन चेक कर दिए हैं। we check common targets and we check 9 common targets आपको मिले। now 9 targets copy and open cytoscape software।
सभी अपना साइटोस्केप सॉफ्टवेयर ऑन कर दीजिए and write down 6 step name network construction. 6 step name is network construction. Open Cytoscape software and write down your notebook in step 6 network construction. Now open. Yes, yes, sir. Your voice is breaking, so Swati, your voice is breaking. Please text in the text box. Okay, how to get gin? तो अभी तक वही बताया था हाउ टू गेट जीन. आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ databases अवेलेबल हैं लाइक जीन कार्ड, स्टिच databases, बैटमैन databases, ड्रग बैंक databases. Yeah, email ID was not verified because of you should use your institutional email ID. Please use your institutional email ID so it will be automatically verified. क्वेश्चन था हाउ टू गेट gene. Put your compound name here and simply search in gene card database. आपको जीन मिल जाएंगे. ऐसे कैसे यहाँ पे आपका डिजीज का नाम लिखो लाइक न्यूरो डिजेनरेटिव या फिर एल्जाइमर जो भी है. ठीक है, तो वो भी मिल जाएगा आपको. जो भी आपको कंपाउंड आपका कोई सा भी यूज में जो आपका जो कंपाउंड है डाटाबेसेस वो कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप. व्हाट यू वांट यू कैन यूज. ठीक है, आपको सिंपली आपके पेपर में साइट करना है कि कौन सा पब्लिक डाटाबेसेस आपने यूज किया है. तो इसमें भी आपको मिल रहा है कि कौन सा आपका डाटाबेसेस आपने यूज किया है. ठीक है,
ऐसे कैसे आप और भी सारे कंपाउंड, जैसे मैंने ये आप ड्रग बैंक का बताया था आपको, ड्रग बैंक से भी आप वेरीफाई करके आप निकाल सकते हो कंपाउंड। खूब सारे कंपाउंड आपका अलग अलग से आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ विटामिन सोमनिफेरा किया, क्लिक करोगे विटामिन सोमनिफेरा में, तो आपको कंपाउंड यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, लॉग इन करो, इंस्टीट्यूशनल आईडी, यहाँ से इंस्टीट्यूशनल आईडी करोगे, आपको क्लिक करोगे मिल जाएगा इसमें सीधा। टीच डेटाबेसेस, और वो भी आप यूज में ले सकते हो, जस्ट आई टी सी, स्टेट डेटाबेसेस। ठीक है, ये डेटाबेसेस हैं, इससे भी आप अपने कंपाउंड से जीन पता कर सकते हैं। तो जीन तो आप किसी से भी पता कर सकते हैं, खूब सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है, हर एक में अलग अलग आपको शो करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली आपका प्लांट या कंपाउंड जो भी है आपका नाम लिखो, आप डायरेक्ट जीन के पास पहुंच जाओगे। यू कैन गेट इजीली जीन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेस। हर पेपर में आपको अलग जीन ये डेटाबेसेस मिलेंगे। ठीक है, लिटरेचर में आपको बताया था लिटरेचर से कैसे कैसे obtain करेंगे आप। तो सिंपली क्या किया आपने, जीन पे क्लिक किया, न्यूरोडिजेनेटिव डिजीज लिखा, आपने सारे सारे आपके जीन यहाँ पे आ रहे हैं। एक्सेल बनाया, कंपाउंड या जो प्लांट है उसका, और डिजीज वर्सेस आपने एक्सेल बनाया। देन आपने क्या किया, वेनी टूल से आपने कॉमन टारगेट्स फाइंड आउट किए। कॉपी ऑल कॉमन टारगेट्स एंड ओपन साइटोस्केप। यस मेघना, वो आपका जो कंपाउंड सिलेक्शन आपने किए हैं उसमें ये आ रहा है, जीन आ रहे हैं, शो कर रहे हैं, उसको आप इंक्लूड करना है पहले कंपाउंड की। फिर आपका ड्रग की या फिर टारगेट के रिलेटेड वो आ रहा है, शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपके उस सॉफ्टवेयर के ऊपर है, कितना कोरिलेशन बैठा रहा है। आप जज नहीं कर सकते कि ये कॉमन यही है, मोस्ट टारगेट यही शो कर सकते हैं। इसमें शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। आपने सिलेक्शन और टारगेट्स कैसे हैं आपके, आपके कंपाउंड में वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो शो करेगा, वरना नहीं करेगा। ओके, सो ओपन साइटोस्केप सॉफ्टवेयर एंड क्लिक ऑन होमो सेपियंस। यहाँ आपने जीन मैनिया शो कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा है तो गो इन ऐप एंड क्लिक ऑन जीन मैनिया। ठीक है, देन पेस्ट हियर ऑल योर जीन्स एंड ओके सर्च। Wait approx 1 minute.
Open Cytoscape software, use GeneMania plugin, and click on Homo sapiens and paste your common targets in GeneMania plugin. Now GeneMania findings related genes to disease, and GeneMania is constructing network. Okay, all candidate, you can see here the network constructed by GeneMania plugin. Okay. So next step is app, layout. So various types of options are available. Click on degree sorted circle. So you can see here your gene and related pathways. These are these are your common genes of 22. Okay. So count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Sir, will you repeat? Yes. Please repeat. Okay. Cop. Wait a second. Click your common gene and copy all 9 common genes and put into a GeneMania plugin and search. Okay. Simple. Okay. So you can see here physical interaction. Sir, it is showing index -1 out of bounds for length 33. It's showing index -1. Okay, no issue. So such network was not produced then. Okay, I will explain each and every steps, and finally we will discuss what is accepted genes or what is negligible genes. Okay. Okay, sir.
So now you can see here various types of log score sheets. And various types of styles are here. You can change your style. Uh, triangle, triangle, and color also. Change your gene color. Okay, label and font also. Font can be changed 12, 13, 14. Okay. Now extract all genes. Once again, I repeat, open Cytoscape software. Open your Cytoscape software and use जीन मैनिया plugin. अगर आपका प्लांट से प्लांट का कोलेशन शो करना है तो यहाँ पे आपको प्लांट शो करवाना है, नहीं तो आपको ह्यूमन से देखना है तो होमो सैपियंस आपको क्लिक करना है. और कॉपीड जीन्स पुट एंड सर्च. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. देन आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है. कहाँ पे आपको फाइल चाहिए वहां पे आपको इस फाइल को लेना है. टुडे सॉरी. So Homo sapiens, click and save and okay, okay, okay. So you can see here today file. We have today file. The file. So various types of scenes are available here. You can see these genes are available. Now second step. First step is gene mania. Second step is cyto-NCA. Okay. So what is gene mania? This is a multiple association network integration algorithm to construct their network based on the functional relationship. Okay. So these results of network we will analyze based on their co-expression, genetic information, physical interaction, pathway, and genetic interaction. Further, the cyto-NCA plugin used to study the topological parameter such as betweenness, degree, and closeness of the network.
Okay. So betweenness, closeness, and degree, and click on analyze button. Yes. Click on betweenness, closeness, and degree, and then analyze. Yes, Yuvraj. यहाँ तक हो रहा है. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप जब पेपर चेक करोगे तो इसमें डिग्री, बिटवीननेस और क्लोजनेस बेस्ड ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रिलेटेड ये क्लिक किए जाते हैं ताकि इसकी बिटवीननेस ज्यादा रहे, क्लोजनेस इसकी ज्यादा, जो नेटवर्क कंस्ट्रक्ट हो सके वो उसके रिलेटेड हो सके. इस वजह से इसको एनालाइज किया जाता है. एंड क्लिक ऑन एनालाइज बटन and export and file name is cytonca and click on yes. Today 5 cytonca2 save. So you can see here cytonca2 first gene ID is 780964. So copy this gene ID and search in Homo sapiens file. So first gene is showing here is APP genes. APP genes is the first top genes correlated to our compound and disease. Yes. Sir, when we put in the gene, it says can't invoke. Yes, you can use various type of software. But I'm Okay. using this software. Yeah. So you can check your gene ID by the help of cytonca. And now its top gene name is APP, and second one 792658. Click and search. Second one is TNF, tumor necrosis factor. First one is APP, amyloid precursor protein, which is related to Alzheimer's disease. And second one, TNF alpha, tumor necrosis factor. It may be related to a cancer and a Parkinson disease. It might be a Alzheimer's disease. Third one, we check third gene name. Third gene name is PTGS2. So firstly, we will only use two genes name. One name is APP, second name is TNF. Okay. So ऐसे ऐसे आपको 10 जीन लेने हैं टॉप
10 या टॉप 5 जो आप यूज में लेने हैं वो आप लोगे। टॉप 5 ले लो या टॉप 10 ले लो। सो टॉप 5 आपको पता लग गया बाय द हेल्प ऑफ साइटोस्केप। ओके, नेक्स्ट स्टेप, gene ontology and gene pathway. Okay, so what is gene ontology? Is a way to depreciate detailed information of gene and their products in terms of molecular function, biological process, and cellular component. So how to perform? Oh, Panther DB. Yes, Sivraj. Please speak, Sivraj sir. What's your question? Cyto-NCA is a simple way you can please repeat from the file. Sir. Okay, I'm repeating. Firstly, is gene mania to oh yeah, sorry, 1 minute. Uh, Many to firstly, we common gene copied and put in Cytoscape's gene mania plugin, and then search, and we explore file in Homo sapiens file name. Then click on add and click on Cyto-NCA and open. Click on without weight, without closeness, degree and betweenness, and analyze. When you analyze, you will find out various types of gene details, degree, betweenness, and closeness. Export all detailed and prepare one file. The file name should be a Cyto-NCA. So you can see here various types of gene name. So your top gene name is gene ID is here, second this, third this, and 4, 5, and 10. You can use maximum 10 and maybe more. So first copy and search your gene card information. Search gene card information. Gene, this not this. Gene card information. You can see here APP. Got it, Mohan? How to save? Okay. How to save file? Yes, sir, Shivraj sir, you can use various type of software because the network pharmacology is a very broad platform. So many research papers are saying different types of software. I'm using very simple software. Each and every student can be used very simple way this software. Again, आपको पहले एक बार मैं मोहन एक बार ये फाइल कंप्लीट करके मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। साइटोस्केप को क्लोज कर दीजिए, ओपन करेंगे वापस साइटोस्केप को,
हो गया? नाउ आपको क्या करना है, क्लिक करना है होमो सेपियंस के ऊपर एंड देन योर वेनी टूल के कॉमन चीज थे आपके, उसको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है। कॉपी एंड पेस्ट इन एंड सर्च। ठीक है मोहन, गॉट इट? एंड एक्सपोर्ट दिस फाइल टू हियर, export this file where you want to save, you can save here. Okay, and okay, save. Then second step, go on app and click on CytoNCA, betweenness, closeness and degree, and analyze and export, and export here. Now second step, write the CytoNCA, copy your top gene and search in Homo sapiens file. You can find, you can see here APP is the top one. Second one is a TNF alpha. Okay, because this ID you can check and search here, find out TNF alpha is second one. ऐसे कैसे आप 5 या 10 जीन टॉप ले लीजिए, मैंने 2 जीन लिए हैं, एपीपी TNF alpha, ऐसा 5 ले लो, कोई भी ले लो, 5 इसमें जो टॉप शो कर रहे हैं वो लीजिए। देन Panther DB, open Panther DB. Okay. Open Panther DB software and put your top gene name here, TNF. Okay, so I'm using 3 gene, top gene. Okay, click on gene list analysis. Click on gene list analysis and put your top 5 gene name, top 2 gene name, top 3 gene name. So APP is first one, second one TNF, and third one base 1. Okay, click on Homo sapiens, select organism. So select organism is Homo sapiens. And click on functional classification view in graphical chart. So I want bar chart. Click on submit button. Okay, so now you can see here molecular function. So I want to see a pathway. What type of pathway as including in this disease versus drug.
So main pathway are showing Alzheimer disease related pathway. हमने सबसे पहले यूज किया लिया था न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर रिलेटेड जीन्स एंड प्लांट विधानिया सोमनिफेरा, इनके जीन्स लिए प्लांट से हमने कंपाउंड के ऊपर पहुंचे। कंपाउंड से हमने ये पता लगाया कि आपका प्लांट पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर काम करेगा। तो इससे पता लग गया अपन को कि एल्जाइमर डिजीज के ऊपर काम करेगा और कौन से पाथवे के थ्रू करेगा। तो पाथवे है आपका अल्जाइमर डिजीज अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटीन वाला पाथवे। सो क्लिक Alzheimer precursor pathway, and you can see here APP protein and KEGG analysis. Check KEGG analysis. Gene ID name is P003. So KEGG ID, enter the IDs. ID name is APP genes, APP gene ID, map pathway. This is pathway, Alzheimer related pathway. So you can see here Alzheimer disease. हाँ, क्वेश्चन है मेघना जी का, अगर एपीपी शो नहीं करे तो आपको चेक करना है सबसे कॉमन जीन्स कौन कौन से शो कर रहे हैं, किस डिजीज से रिलेटेड सबसे कॉमन जीन्स शो कर रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड काम करेगा। आप प्रेशर डाल के उसको उस डिजीज के ऊपर काम नहीं करवा सकते। हाँ, ये इसमें शो करना ही चाहिए। आपका कैंसर से रिलेटेड आपकी इफेक्टिवनेस आ रही है तो वो कैंसर पे ही काम करेगा। इसमें शो आपने जैसे देखा उसमें एपीपी शो हुआ, तो एपीपी शो इसलिए हुआ कि मैंने मेरे प्लांट का न्यूरो डिजेनरेटिव पे देखा, ना कि मैंने कैंसर पे डाला उस पे। अगर मैं कैंसर पे डालता न्यूरो डिजेनरेटिव की जीन आईडी जीन कार्ड पे कैंसर के जीन इंक्लूड करता तो वो जीन का शो करता। मैंने चेक की न्यूरो डिजेनरेटिव पे किया है तो न्यूरो डिजेनरेटिव पे पर्टिकुलर डिजीज के बारे में शो किया उसने। व्हाट इट मेघना, फर्स्ट में ही अपने जो जीन सेलेक्ट किए वो पर्टिकुलर डिजीज के रिलेटेड जीन्स चेक किए, ना कि अपन ने कैंसर के रिलेटेड किए। तो फर्स्टली आपको फिक्स ये होना चाहिए कि हाँ आपको किस डिजीज के ऊपर काम करना है। अगर आप कैंसर के रिलेटेड जीन लोगे तो कैंसर के रिलेटेड ही जीन्स आपके आगे शो होंगे। गॉट इट।
अब देखो सबसे टॉप जीन आपका एपीपी आया था, तो जीन आईडी पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, एपीपी सर्च। तो आपका एपीपी का ये आ रहा है एपीपी, ठीक है। तो यहाँ सीधा आप ले सकते हो कैट, सीधा ले सकते हैं कि एपीपी इस पाथवे के थ्रू काम करेगा। ओके, तो यहां तक ये पता चल गया कि आपका जो प्लांट है या फिर कंपाउंड है वो किस पाथवे के थ्रू काम करेगा। तो इस पाथवे के थ्रू काम किया है और एपीपी आपका यहाँ आया, तो इस पाथवे के थ्रू ये आपका जो लिमोनिन था या फिर जो विधाने सबने कह था, वो इस पाथवे के थ्रू काम कर रहा था और एपीपी को सप्रेस करने का काम करेंगे। Alzheimer disease पे amyloid replication protein में। गॉट इट। यहाँ देखो आपने टाउ का भी शो किया था, सेकंड वन टाउ था, तो टाउ भी यहाँ आ रहा है, ठीक है। पीएसईएन शो हो रहा था, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन रिलेटेड टू एल्जाइमर डिजीज आपका प्लांट काम कर रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी आपको इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, सो आप इजीली आपका क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, स्पीकर ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपन ने चेक कर लिया आपका ड्रग या फिर प्लांट किसके रिलेटेड काम करेगा। सर काफी बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब हम कैक पाथवे वगैरह देखते हैं तो उनके पाथवे ऐसे होते हैं कि कोएगुलेशन वाले आगे उस पाथवे के अंदर वो जीन मिल रहा है। हमने जो जीन्स कॉमन टारगेट्स ढूंढे थे, वो कॉमन टारगेट्स हम ढूंढते तो हैं फॉर एग्जांपल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी एक डिजीज के लिए, और अगर हम उसको चेक करते हैं जब पाथवे के अंदर, तो पाथवे किसी और का मिलता है, जैसे कोएगुलेशन पाथवे के अंदर हमें वो जीन मिल गया। तो जी, आपने जीन हाउ डू आईडी वी बराबर शो नहीं प्रेजेंट की। इट? हाँ, जीन आईडी आपने बराबर क्लिक नहीं की होगी। जैसे ही आपने, देखो मैं दिखाता हूँ वापस, आपने जैसे ही आपने पेंथर डीबी यूज किया तो इसमें ये जीन आईडी शो कर रही है आपको। तो अगर ये जीन आईडी शो करेगी तभी तो इसके कोई पाथवे में है, तभी तो ये शो कर रही है जीन आईडी, वरना शो कैसे करेगी। समझ गए। अगली बार नेक्स्ट टाइम जब यूज करो तो आप पेंथर डीबी यूज कीजिए, तब जाके आपको एकदम क्लियर होगा कि हाँ ये आपका जीन कहाँ पे एक्शन शो कर रहा है और किस पाथवे के थ्रू कर रहा है। समझ गए। Sir, please share the recordings today. हेलो, Hello, sir. Please share the recordings today. रिकॉर्डिंग। Yes, sir. Okay, sir. Okay. Sir. कमेंट कमेंट। Sir, can you repeat ADME SAR 3.0? ओके, स्विस एडीएमई, ओपन स्विस एडीएमई सॉफ्टवेयर, click on Swiss ADME and paste here your Smiley ID. Sir, ADME SAR 3.0. Okay, 3 point. This one? Yes, sir. It is. Wait a second. Put your Smiley here and search. Get result.
predict. So what happened after get results? ADME is mainly using for toxicity study. If showing your compound and your plant showing the toxicity, No, that like a new screen that is not showing when I am putting my smileys. it's maybe a trouble, man. Troubleshooting. Now you can check view, and you can see here physiochemical properties, medicinal properties, and metabolism related ADME, excretion, distribution, and toxicity, carcinogenicity showing reproductive system toxicity, mitochondrial toxicity showing. Various types of toxicity is showing this compound, and compound name is within light T. Okay. Main And purpose. when See I what? put in Gene Mania, the genes that you told, when I put it in the Gene Mania, for me it was not showing the network. Instead, it said something like a -1 index out of 33, something like this. It will swing, and it's maybe a trouble, but it's showing. Again, quite all software and then open and repeat. It may be show. Anjali, please ask your question. Good evening, sir. So, you Good took the plant Pridania and you just used all the phytocompounds that were there. Let's say I have a result coming from my LCMS study and I want to use only those. Yes, So, only those I you want can to go see with. here. You can see here. I explain one study. This one. This one is in one. Wait a second. This one. यहाँ देखोगे आप, इन्होंने सिंपल एक कंपाउंड पे कर रखा है. कंपाउंड नेम बताया ना, जेरेनियम. एक कंपाउंड के ऊपर इन्होंने कर रखा है. ऐसे कैसे आप, अगर आपका कंपाउंड है तो कंपाउंड के ऊपर भी कर सकते हो, अगर आपका प्लांट है तो प्लांट के ऊपर भी कर सकते हो. कभी कभी शो नहीं करता है. जब एक बार शो करोगे, जैसे ही 4-5 दिन बाद में वापस आप उसको चेक करोगे तो शो करने लगेगा, क्योंकि वो पहले इनपुट लेता है अपन से, देन वो शो करता है. खूब सारे कंपाउंड है तब शो नहीं करता है, प्लांट के ऊपर भी शो नहीं करता है. तब आप रिपीट करोगे 3-4 दिन बाद में तो वो शो करने लग जाएगा. सर, हमारे पास जो कंपाउंड्स एक पर्टिकुलर प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स है, वो सारे हैं. हाँ. तो उसमें जितने भी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्टिवली पाए गए थे एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में, उसका हमने एलसीएमएस करके डिराइव अगर कर लिया, तो सिर्फ वो कंपाउंड्स ही डालकर हम बाकी का कर सकते हैं ना. लाइक इट कैन बी हाँ कर 60 सकते हो. ऐसा कर. हाँ कर सकते हैं, सबका कर सकते हैं. आपकी सबकी फीस ये स्माइली रेडी कर दीजिए, एंड देन कंपाउंड आपका वो करके आप चेक कर सकते हैं. हमारे पास सर उनका एडीएम. सारा का ही स्माइल्स वगैरह इफ है, तो वो सिर्फ अपलोड करके वी कैन गो फॉरवर्ड विद द नेटवर्क फार्माकोलॉजी, राइट? हाँ सीधा कर सकते हैं आप. उसका डायरेक्ट कंपाउंड को ले लीजिए, आईडी बना दीजिए पूरी एक अलग से, पूरा बना के उसका इसमें रेडी कर दीजिए. आप कर सकते हैं इजीली. अगर आपको कोई ट्रबल आए तो आप मेरे को शेयर कर दीजिए, मैं आपको करके स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा. जी सर, थैंक यू सो मच. यस प्रतिभा. Hello. यस. Sir, please Yes, tell ma'am. me how to interpret the given network in the papers.
ओके, देखिए एक पेपर है, दिखाता हूँ आपको, एब्स्ट्रैक्ट शो करता हूँ मैं आपको, जस्ट लाइक मेरे पास एक पेपर है, स्क्रिप्ट, ये यहाँ पे एक मैन्युस्क्रिप्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, वेट सेकंड, आप मेरे पास में एक मैन्युस्क्रिप्ट है, आप चेक देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक वल्गरिस करके को प्लांट है, उसके बारे में किया है। तो ये सारे के सारे एडमेट टूल वगैरह सब स्विस, एडीएमई, पास, ऑनलाइन, ये सारे जो डाटाबेसेस है हमने यूज किए। देन हमने 13 न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के टारगेट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक वल्गरिस प्लांट है, उसके रिलेटेड पता लगाया, और टॉप 10 टारगेट्स हमारे पास ये आए, उसको ऐसे आप शो करोगे। और इंटरप्रेट मैंने आपको बताया था कैसे किया था आपको, आपके होमोसेपियंस और साइटो एनसीए वाले जीन से उसको एक दूसरे से क्या जीन आईडी को चेक करके आप करोगे इंटरप्रेट, समझ गए? राज बोलिए, लास्ट क्वेश्चन मनीष। Hello, sir. Sir, can you please explain the KEGG pathway analysis part again? The KEGG pathway. KEGG pathway, where is KEGG Excuse pathway? me, sir. Simply search KEGG analysis, click on KEGG. यहाँ पे आप सीधा आपकी जीन आईडी है वो डाल सकते हैं, जैसे कैग में एपीपी डाला है आपको तो एपीपी डाल सकते हैं, या फिर आपका जो डिजीज है, लाइक आपकी डिजीज है एल्जाइमर, एल्जाइमर डिजीज, या फिर पार्किंसन, मान लो कोई पार्किंसन डिजीज है, ठीक है, तो आप सीधा उसके पार्किंसन का सॉफ्टवेयर आ गया पूरा आपके पास, मैप आ गया, मैप के ऊपर क्लिक करना है आपको। देन आपको अपनी जो आईडी है, जैसे आपका कोई जीन है लाइकर टीएनएफ हो गया वगैरह, वो आप यहाँ पे चेक करना कि किस पाथवे के थ्रू ये काम कर रहा है। सर्च, सिंपली सर्च, ठीक है, यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे सर्च करोगे और सिंपली आपको पाथवे शो कर देगा, पाथवे मेनू, यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए पाथवे को और आपके पेपर में साइट कर दीजिए पाथवे को कि इस पाथवे के ऊपर वो काम करेगा, समझ गए? Okay, sir. Thank you, sir. Hello, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, has I was actually not able to download the genes from GeneCards because my email ID was not getting verified. You also said that I can do the same with Drug Bank and with Stitch, right? Your voice is breaking now. Hello. Yes. Yes. So Comment I in was comment box में। okay. Okay. First comment. Hello, sir. Yes, Yuvraj. If we want to study the pathways of hub genes, so we can refer that KEG pathway map only, na? Take one. Share recorded video as well. Some of parts got missed due to notification. No.
Depend on Dr. Sumit sir. So they may be provide, but I don't have any videos. So if you have any trouble and problem in this, so you can easily contact to me. My email ID bhumeshpunia@gmail.com. So you can easily contact. Yes, Yuvraj, ask your question. Yes, sir. Sir, after selecting hub genes, so how to Yes. construct the pathways of those genes? Is it by What? referring KG pathway maps? Yes. Not a construct of pathway. Only copied when it was software copy and paste into the Gene Mania, then construct the network and further all top genes copy and put into the Panther databases. By the help of Panther databases, we will get the No, sir. I'm asking about the analysis part after getting the hub genes. How to conclude the hub genes are interconnected in pathways? how to connect it. So between cyto-NCA, there can be pathways with the help of cyto-NCA between NAS, closed NAS. Okay. Okay. Yes, Pratibha. Is related to truck from truck panel. Okay. Wait. Data bank databases. Write your email ID. यहाँ से आप सीधा ट्रक के ऊपर टारगेट क्लिक करोगे, आप आईडी बना दीजिएगा यहाँ पे एक बार, और सीधा आप अपना प्लांट का नाम जैसे जो भी है क्लिक कर दीजिएगा, और आप पास ये सारे कंपाउंड आ जाएंगे, अंदर आपके जो जीन है वो आ जाएंगे। सिंपली क्लिक करोगे आप जीन के ऊपर, ठीक है, सिंपली क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका जीन का नाम आ जाएगा और नीचे जीन की आईडी आ जाएगी। ओके, मैंने अभी अकाउंट नहीं बना रखा है, आप अकाउंट बना के करोगे तो आ जाएगा। ठीक है प्रतिभा? Yes, sir, I understood. Okay. And So I think how can we do the same for disease, genes related to disease? कोई सेम रहेगा पैटर्न, ये सिर्फ आपको प्लांट का बारे में बताएगा, प्लांट के ड्रग के बारे में, ना कि आपके डिजीज के बारे में। प्लांट के जीन है उसके रिलेटेड बताएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। आप डिजीज के बारे में मत करना, डिजीज के बारे में आपको करना तो जीन कार्ड यूज करना, एनसीबीआई डाटाबेसेस है वो यूज करना, और लिटरेचर। Okay. ठीक है, Thank you. ओके सुमित सर। तो सबको समझ में आया होगा, और कम से कम कल ओके। Hello, sir. बताइए।
Yeah, sir. If we need to study about the more compounds, so how to compile those gene targets in one file to get common targets? कुछ नहीं करना है, एक्सेल फाइल बनाना है। ऐसे जैसे ही आपने लिटरेचर का किया, एक आप फाइल बनाना है, जैसे डिजीज का आपके डिजीज की बना दी, तो डिजीज में कौन कौन से आप प्लेटफॉर्म यूज में ले रहे हैं, वो उसके नाम लिख के आप अपने जो रिलेटेड जीन आ रहे हैं वो लिख दोगे। देन सभी को आपको वेनी टूल में पुट करना है, साइड में लिखना है, और नॉर्मली के रिलेटेड जीन वो वहाँ पे देना है। जितने भी आ रहे हैं, जितने भी आपने निकाले हैं, देन आप सीधा कॉपीड जीन ही डायरेक्ट जो कॉमन जीन आ रहा है उसको देन उसको आप ठीक है। तो मल्टीपल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आपको फाइल का नाम भी वही बनाना है। समझ गए आप? Okay, next question. I think completed all question. Thank you. Okay, Yes. now we conclude the session. Thank you very much, Mr. Bhuvnesh, for such an excellent hands-on session. We hope all the participants enjoyed today's practical training and gained valuable experience in using the network pharmacology workflow. We sincerely thank you for your time, guidance, and continuous support. I would also like to thank all our participants for joining today's session and for your active participation. Tomorrow's session will begin sharp at 7. We request everyone to join by 6:50 p.m. so that we can begin on time. On behalf of Time Phytobiome and AdGrow Foundation, thank you once again for being with us today. We look forward to seeing you tomorrow. Thank you, everyone. Have a wonderful evening. Good night and Jai Hind.